For property income, as per ACCA taxation, under this scope, we are going to assess the property income. Likewise, it means that we are earning property income, and besides that, like besides assessing and calculating the property income, we have to see that how much tax that individual is going to pay on it. So first of all, let's look at the ways how to earn the property income. Exactly what do we mean by property income? The first thing is that any profits which you have earned through your property will be categorized as property income. Second, premium received on the grant of short lease. So this premium received is also going to be categorized as the property income. How you have to calculate the premium, what do we mean by the lease, we are going to see all of these things in the next slide. Second is FHL profits, furnished holiday lettings. Let's talk about any farmhouse which any families come for spending their holidays. So when they also pay for that, all of the profits out there, so these are also a part of your property income. And the last, rental income for rent a room scheme. If you have qualified for this scheme, like your room of your building is on rent and you're earning rental income on it, so all of these things are going to fall under property income. प्रॉपर्टी इनकम का मतलब कहीं से भी सिर्फ ये नहीं होता कि आपने अपना घर का कोई पोर्शन रेंट पे दिया हुआ है और बस जो रेंटल इनकम आ रही है दैट इज ओनली द प्रॉपर्टी इनकम. नो, इसके द स्कोप इज वाइड. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Okay, what is the basis of assessment? It's very easy. We are following the fiscal year 21-22. आपकी इनकम उस ईयर की, द एक्सपेंसेस लाइक सिंपली कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं. अगर क्वेश्चन ये स्पेसिफाई करता है कि एक्रूवल्स बेसिस के तहत आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो फिर आप जितने मंथ्स वो एक्रूड होंगे आप उतने लेंगे, ठीक है. अदरवाइज वट एवर यू हैव रिसीव्ड अकॉर्डिंग टू द कैश बेसिस, आप वो रिकॉर्ड करके उस रेलिवेंट टाइम पीरियड के लिए प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, ओन्स, अगर एक ओनर उसके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट एग्रीगेट इनकम विल बी टैक्स्ड, राइट. द टोटल वन आउट. योर एफएचएल इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता क्योंकि एफएचएल के लिए, फर्निश्ड हॉलिडे लेटिंग्स के लिए हमारे पास रूल्स अलग से हैं, लाइक स्पेशल रूल्स हैं, एक्सेप्शनल है. Okay, like we discussed in the last slide, it's rental income received. For example, I took 1 lakh, आपके expenses उससे related 80,000, assessable income 20,000, इसको हम categorize कर देंगे in the property income. Now, whatever you have received, tax has allowed some deductions. ये जो मैंने expenses यहाँ पे लिखा है, what do I mean by this is, journal rule ये कहता है expenses incurred wholly and exclusively for the purpose of property business. यानी कि ऐसे expenses जो कि पूरे के पूरे 100% और सिर्फ प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए अगर इंकर हुए हैं तो येस इट इज अलाउड, आप वो अपनी इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, द मोर एक्सपेंसेस यू हैव, द लेस असेसिबल इनकम यू विल बी हैविंग और फिर द लेस टैक्स यू विल बी पेइंग. So let's read out the allowable deductions. If your question includes anything related to insurance, minus. Agent's fee and other management expenses, repairs, interest on a loan to acquire or improve a let non-residential property. अगर non-residential property है, किसी ऑफिस की बात हो रही है, घर के अलावा किसी और चीज की बात है, उसको एक्वायर करने के लिए कोई लोन लिया गया था और उस पर जो इंटरेस्ट यानी कि फाइनेंस कॉस्ट वो माइनस कर सकते हैं. अगर क्वेश्चन ट्रिक करने के लिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लिखता है, मतलब ये पूरा आपको देगा इंटरेस्ट ऑन अ लोन टू एक्वायर, बट तो यू आर नॉट गोइंग टू सबट्रैक्ट इट, वो गलत हो जाएगी वो चीज, ठीक है. और ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, एनी प्री ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर, राइट, तो दैट इज उसके लिए रिलीफ अवेलेबल है, ठीक है, वो आप सबट्रैक्ट कर सकते हैं. ट्रीटमेंट इज द सेम. If property is occupied for part of the year by the owner, private use expenses are not allowable. Why they are not allowable? Because we are taking the wholly exclusively wala point. ठीक है?
इसलिए now coming towards the difference between residential and non-residential properties. Residential is like your house in which you are living, आपने वो rent पे दिया है, and other things come like the non-residential one. Okay, first thing for the residential, owners do not get tax relief for their mortgage costs. On finance costs for buy to let residential property, tax relief can be claimed at 20%. Very straight away टैक्स रूल्स हैव बीन डिफाइंड ओवर हियर, जहां कोई आपको टैक्स रिलीफ नहीं है तो नहीं है उस चीज के लिए, और फाइनेंस कॉस्ट के लिए फॉर बाय टू लेट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ठीक है, उस पर आप क्लेम कर सकते हैं 20% लाइक ऑन द बेसिक रेट. ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द रिलीफ. द फर्स्ट रिलीफ इज रिप्लेसमेंट डोमेस्टिक आइटम रिलीफ. डोमेस्टिक आइटम का मतलब ये जैसे किचन अप्लायंसेस की आप बात कर लें, ठीक है, लाइक द डोमेस्टिक आइटम्स आर आउट देयर. सो अगर वो रिप्लेस किया है उसे आपने अपने घर में, तो उस पर आपको रिलीफ मिल सकती है. एंड हाउ यू विल बी गेटिंग दैट रिलीफ इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट. लेट सपोज आई वाज हैविंग अ वॉशिंग मशीन, मैंने उसको रिप्लेस किया. नाउ व्हाट वाज माय रिप्लेसमेंट कॉस्ट, आई विल राइट इट डाउन ओवर हियर. एंड प्रोसीड्स फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ द ओरिजिनल. मैंने पहली वॉशिंग मशीन सेल की, मुझे लेट सपोज कि वो मुझे 500 पाउंड्स की वो चीज जो है वो सेल हुई. राइट नाउ यू हैव टू रिकॉर्ड योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट एज वेल. रिप्लेस करने के लिए लेट्स से 700, सो योर रिलीफ वुड काउंट फॉर 200 पाउंड्स. राइट, and again this relief is not available to FHL. We are only studying and understanding the residential property thing. Okay. ओके, अगर क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई करता है एक्रूवल्स बेसिस के लिए तो यू कैन लाइक गो फॉर द एक्रूवल्स बेसिस. अदरवाइज बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी इनकम को हम कैश बेसिस पे ही असेस करते हैं. यू कैन ऑप्ट टू यूज इफ रिसीट्स आर मोर देन 150,000 pounds, so then accruals basis. Tenant leaves without paying outstanding rent, amount is never taxed under cash basis. ठीक है, अगर कोई tenant चला जाता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करता और आउटस्टैंडिंग रेंट रह जाता है, तो उस अमाउंट को टैक्स नहीं किया जाता. ठीक है, लेट सपोज आपने टेनेंट से 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट किया था और 5,000 पाउंड्स पर मंथ लेट्स से वाज द रेंट, और वो नहीं पे करके गया, चला गया ऐसे आउटस्टैंडिंग. कैश बेसिस पे इसको टैक्स नहीं किया जाएगा, लेकिन एक्रूवल्स पे किया जाएगा. So whatever method the taxpayer is going to opt, he has to follow the rules. Expenditure incurred on plant and machinery isn't an allowable deduction because this is like the capital expenditure. Okay. Okay. Abhi property income se related, we were talking about the profits. So it's never about the profits, it's also about the loss. Dono cheezein, both sides of the coin should be discussed, should be treated. So tax treatment iske liye kya hoti hai? Aapko, let's suppose you were having four properties, दो में profit है, दो में loss. आप चारों को aggregate करेंगे. If overall it's a loss, the property income would be taxed nil. मैं इसकी एक example यहाँ पे, let me just draw it down over here. Let's suppose you had A, B, C, D properties. Property A में you got 1,000 loss, property B में you got 2,000 profit, C में you got 500 loss, and here you got 800 profits. तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, आप net off करेंगे, aggregate लेंगे. Let's suppose 1,000 and 500, 1,500, 1,500, 800. Just let me calculate it and get towards it. 1,300 का profit आता है total. तो it means it's not a loss. लेकिन let's suppose कि 1,300 negative आ जाए, तो हम 1,300 negative नहीं लिखेंगे. We will write it down as 0, nil, because it can never be turned into a negative figure. टैक्स कभी भी नेगेटिव फिगर से जीरो से पे नहीं किया जाता. टैक्स इज ऑलवेज पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स. सो थर्ड थिंग इज कि अब लॉस से 1,300 क्या करें, तो ये 1,300 आप कैरी फॉरवर्ड करवा देंगे नेक्स्ट ईयर के प्रॉपर्टी बिजनेस प्रॉफिट से ही ओनली. ट्रेडिंग इनकम से, एम्प्लॉयमेंट इनकम से या किसी और इनकम से ये सेट ऑफ नहीं होगा. राइट, ओके. देन द प्रीमियम रिसीप्ट. प्रीमियम रिसीव्ड लाइक ऑन द ग्रांट थिंग की बात हो रही है यहाँ पे. एवरी लैंड यू नो एंड एवरीथिंग इट्स ऑन लीज एंड इट्स बाय द गवर्नमेंट, राइट. यूके में भी इसी तरह से. सो लाइक इन पाकिस्तान वी हैव इट फॉर 100 years. So
अच्छा, the formula around here is amount accessible premium. ठीक है, लेट्स सपोज प्रीमियम 24,000 है, तो आप उसमें से ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाला जो चीज है, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, दिस इज लाइक द नंबर ऑफ इयर्स. सिंपल इज दैट. यू विल सब्ट्रैक्ट इट, यू विल गेट योर अमाउंट असेसेबल. जस्ट लाइक प्रीवियस हमने प्रॉपर्टी बिजनेस प्रॉफिट्स को असेस किया है, ठीक है, कैश बेसिस पे प्रीमियम रिसीव के लिए ये वर्किंग है 2 मार्क्स के लिए. Okay, coming towards the furnished holiday letting FHL. Okay, FHL follows कैश बेसिस ऑन डिफॉल्ट. कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो FHL के लिए क्वालिफाई करती हैं? प्रॉपर्टी इज लेट फर्निश्ड. ठीक है, कमर्शियल बेसिस के लिए है, दिखनी मतलब ये चीज पता चलनी चाहिए. And how will we come to know about it? Available for letting to public for not less than 210 days. ये पूरे साल की बात हो रही है. 210 days means 7 months. और एक्चुअली ये अवेलेबल होनी चाहिए like 7 months. एक्चुअली लेट फॉर एटलीस्ट 105 days a year. तो आप कहेंगे अच्छा दिस इज FHL. 105 days means that like 3.5 months. तो एक्चुअली लेट होनी चाहिए 12 महीनों में से 3.5 साल तक. एंड इट शुड बी अवेलेबल फॉर लेटिंग लाइक टू द पब्लिक. ओके, नॉट टू योर फैमिली, टू द पब्लिक आउट देयर. सो फिर हम इसको क्लासिफाई करेंगे FHL में. फिर उसके स्पेशल रूल्स हैं. टैक्स ट्रीटमेंट इसकी क्या है? फाइनेंस कॉस्ट दे आर फुली डिडक्टेबल 100%. Profits are treated as relevant earnings for the purpose of tax relief for the pensions thing. इसका कनेक्शन पेंशंस के चैप्टर के साथ है. जब हम पेंशंस की वीडियो पे जाएंगे तो then I'll tell you what is the connection out there. Okay, we have already covered this thing, so ये इसका सिर्फ formula है, just leave it. Okay, the next relief is rent a room relief. Rent a room relief में like if I'm the owner of a property और मैंने एक रूम रेंट किया है, ठीक है, if my gross annual receipts are 7,500 pounds or less, मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना, exempt. ठीक है, मैंने कोई और इनकम रिसीव की है तो मेरी ये लिमिट हाफ हो जाती है. लेकिन अगर मेरी जो रिसीट्स हैं, राइट, दे हैव क्रॉस्ड 7,500 pounds, तो देन आई कैन गो फॉर लाइक रेंटल रूम रिलीफ. तो नॉर्मल मेथड सबसे पहले क्या कहता है? आपने जितनी रेंटल इनकम रिसीव की है माइनस एक्सपेंसेस, दिस इज योर प्रॉफिट. ओके, सेकेंड मेथड इज नॉट द एबनॉर्मल मेथड बट रेंट अ रूम रिलीफ मेथड, जिसमें ये आपको रिलीफ मिल रही है 7,500 की. सो रेंटल इनकम सेम 10,000. यू हैव क्वालिफाइड फॉर द रेंट अ रूम रिलीफ बिकॉज योर receipts have exceeded, तो then you will get. अब इसमें आपने देखना होता है कि अगर आपके एक्सपेंसेस 7,500 pounds से ज्यादा है तो फिर आप कौन सा मेथड लेंगे? Of course you will take the normal method. Okay, and we already have discussed regarding the property business loss as well. You can see that it's like a summary over here. ये बात मैंने अभी कुछ देर पहले भी आपसे की है. That was just like a summary of property income. It's not a very lengthy topic out there, so 4 चीजें इसके अंदर है, उसका स्कोप डिस्कस किया है. So this was like a short video, you can say a very quick revision video, but without questions. So for questions you will have to watch another video that will also be uploaded soon. So till now, signing off from here. Thank you.